Is it fine now? Okay, so today we will discuss the two difficult set from yesterday's paper. Okay, जिन्होंने नहीं भी दिया हम लोग ऐसे भी मतलब we are picking up those two sets. Okay, कोई बात नहीं. Let me upload the PDF. Okay, should we see this one first? This is the first set, no? Okay, anybody who got the answer to this? Did you try it after the exam? कौन सा बार ग्राफ? बार ग्राफ ये वाला. This one. Okay, we'll see these two sets. Okay, let's see this one first. Read the information. Those who didn't attend the test, read the information. Applicants from management programs of Indian Institute of Management and Foreign Trade (IIFT) and Management Institute of India, that is MII, have to appear for a common admission test, that is CAT. The test has three sections: logical, LR, verbal, V, and quant, Q. Among those appearing for CAT, those at or above 80 percentile in at least two sections and overall above 98th percentile. So it was a difficult question from Venn diagram, but still it is solvable with all the informations provided. Okay. So let's see it. We'll take a 3-parameter Venn diagram. Okay, what are these 3 parameters? What should I write there? What are the 3 circles I have taken? Yes, it's LR, V, and Q. LR, V, and Q. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कंडीशन पहले समझने की कोशिश करो, फिर सॉल्व करने जाना. तो वो बोल रहे हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है कि कैट वाला जो एग्जाम है उसमें जो भी लोग एटलीस्ट 2 सेक्शंस में मोर देन 80 परसेंटाइल है एंड ओवरऑल 90 परसेंटाइल है, वो लोग क्या है, वो लोग सेलेक्ट होंगे फॉर अनदर एग्जाम दैट इज कॉल्ड ZAT, ZAT, conducted by IIMF. ZAT is used by IIMF for final selection. ठीक है? Is it pausing? Please refresh once. I'll also. Okay, fine now. If you are getting a lag, please refresh. Okay. So this ZAT exam will be given by whom? Who will be selected for the ZAT exam? Those who have 80 percentile in 2 sections, in at least 2 sections, which means either in 2 sections or 3 sections, because they have said at least 2 sections. It means you have to include both 2 section and 3 section.
Okay, so 80 percentile in 2 sections or 3 sections, and 90 percentile overall. 90 percentile overall. So these are the people who will be selected for SAT. Okay. So 2 sections means what are the options? So you can see here, these are like 2 section area, 2 section, 2 section, and 3 section. So all the people that will be here in this area, they will be selected for SAT, and those who get 80 percentile only in 1 section will not be selected for SAT. Clear? Okay. So now we are going to make this Venn diagram for how many students? We can see here there is information for the 200 candidates who are at or above 90 percentile. We are going to make this Venn diagram only for these 200 candidates who are above 90 percentile overall. Okay. Now, and what are these circles representing? The circle for LR represents the 80% the students who will get 80 percentile in LR. Okay, 80 percentile in LR is represented by this circle, 80 percentile in VARC is represented by this circle, and 80 percentile in quant is represented by this circle. That is how, when you consider candidates over here, then these will be the candidates who have 80 percentile in both V and Q. Okay, that is how these will be selected for the SAT exam. Why 80? Because that's the criteria, no? That's the criteria for selection. You have to have 80 percentile in 2 or 3 sections. That's why we are using that Venn diagram. Clear? Any doubts? Okay. Next, let's see what else. So there are some clues given. Now we will use those and solve this. Okay. So the number of candidates who are at or above 80 percentile only in LR. Okay, first let's take variable. The best way to solve Venn diagram is to take variable. Venn diagram का क्वेश्चन है, ये कैसे स्ट्राइक करेगा? गुड क्वेश्चन. ये स्ट्राइक करेगा क्वेश्चन पढ़ के. ठीक है, यहाँ पे 3 सेक्शंस दिए हुए, ऐसा बताया. उसके बाद जैसे ही ऐसे बोला कि 2 सेक्शन या 2 से ज्यादा सेक्शन में जिनके 80 परसेंटाइल है, तो यानी कि जब भी ऐसी बात की जाए कि इसमें भी हिस्सा है और इसमें भी हिस्सा है, मतलब 2 चीजों का कंबाइंड हिस्से की जब बात की जाए, तब हमें समझ में आना चाहिए कि वो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है. Okay, so there are these many people, they are part of this also, this also. Then we have to understand, we have to take a hint from there that it is a question from Venn diagram. Okay. All right. Now let's take variables. That's the best way to solve Venn diagrams. We'll take A, B, C, D, E, F, and G. And we'll take H also, that is outside the Venn diagram. 200 में से हो सकता है कि कोई ऐसे भी बच्चे हो जिनका ओवरऑल 90 के अबव है, पर किसी भी सेक्शन में 80 ना हो. If that is possible, then we have to take, at least we have to consider this. According to the clues, we can figure out if H is having some value or it is 0. ठीक है? Okay. So first clue is the number of candidates at or above 80 percentile only in LR. Only in LR किसकी बात हो रही है? Tell me from the variables the number of candidates who are at or above 80 percentile only in LR are A, right? So now I will start forming equations. Venn diagram ले लिया, variable ले लिए, clues use करके equations form करेंगे और देखेंगे कि मतलब इतने equations हो पाए कि सारे variables का answer निकल सके. That's it. This is what Venn diagram is. If you follow these steps, you will always get the answer. ठीक है? Next. So the number of candidates at or above 80 percentile only in LR, that is A, is the same as the number of candidates who are at or above 80 percentile only in V. Only in V. यानी कि A is equal to B. उसके आगे, and then the same is the number of candidates who are at or above 80 percentile in Q. So they have even made our work simpler. ठीक है, you can remove B and C
and put A instead, because A was equal to B was equal to C. Only LR is equal to only V is equal to only Q. Therefore, we can take all three values as A. तो हमारे दो variables कम हो गए. Great. Next clue is number of candidates below 80 percentile in LR, below 80 percentile in V, and below 80 percentile in Q is in the ratio 4:2:1. अब इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? 4:2:1, below 80 in LR, V, and Q. Below 80 in LR, V, and Q. Tell me in terms of variables, what should I take? 80 से कम, या below 80 in LR कौन होंगे? Same or above. Number of candidates below the 80th percentile in LR, number of candidates below 80 percentile in V, and number of candidates below 80 percentile in Q is in the ratio 4:2:1. राइट श्रेयांश, करेक्ट बोल रहे हो. वेरिएबल्स में बताओ. फर्स्ट वाले में सिर्फ इतना देखो, बिलो 18 LR कौन से होंगे? बिलो 18 LR, राइट अभी मिल गए. तो द आंसर इज 2A plus F. ठीक है, 2A plus F. So there is no information about H, no? Among those who are appearing for CAT, those who are 80% or above. So H is 0, okay? We don't have to take H. So 2A plus F समझ में आ गया क्या अब? I'll explain, okay? जिन लोगों को समझ में नहीं आया how we have taken 2A plus F, I'll explain to you. So below 80 in LR, ये पूरा सर्कल में कौन लोग हैं? A, D, E, and G. They have 80 percentile or above in LR, right? These people A, D, E, and G have 80 percentile or more in LR. So if they are asking me the ones who are below 80 in LR, can I say it will be A, F, and A? Therefore, it is 2A plus F. Clear now? Anybody still have a doubt? Now tell me the next value. For below 80 in V, what should I write? Below 80 percentile in V, 2A plus E. Why? Because this circle comprises of people who are 80 or above in V. So apart from this, we are left with A, E. So 2A plus E are the people who are below 80 in V. So those who still had a doubt, now is it clear? डिपेंड कोई किसी पे नहीं कर रहा है यहाँ पे. LR में अगर 80 नहीं है, मतलब जिन लोगों का LR में 80 नहीं है, इस A का क्या LR में 80 है? इन A का बताओ मुझे. इस F का क्या LR में 80 परसेंटाइल है? इस A का क्या है LR में 80 परसेंटाइल? क्लियर विशाल? कम है यही तो बता रहे हैं ना. नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80 परसेंटाइल इन LR. It's given no LR. क्या बोल रहे हो सौरभ, शुभांगी? समझ भी नहीं आ रहा मुझे. मैं बोल रही हूँ ये LR ये है ना, वही तो बता रही हूँ कि
इन लोगों का LR में 80 है और इन लोगों का नहीं है. आई एम नॉट कॉलिंग देम एज LR स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग कि इनका तो LR में 80 नहीं है ना. So if they are asking me which are the students who don't have 80 or above in LR or who have below 80 in LR, so these will be the ones, no, क्योंकि इनका नहीं है 80 LR में, नहीं तो ये लोग LR के सर्कल के अंदर होते ना. What if a student has below 80 in all three? So that is not given. It's given that all these 200 candidates who are 90 percentile overall, for these we have to draw the diagram, and among these, those who have 80 percentile in 2 sections or more sections will be selected for the ZAT exam. ठीक है, ऐसे जो जिनका किसी में भी 80 ना हो वो यहाँ पे दिए हुए नहीं है, वो इस 200 में नहीं है. ठीक है, फाइनली फॉर Q को छोड़ के क्या वैल्यूज बच रही है वो लिखेंगे, तो है 2A plus D, क्योंकि Q के सर्कल में जो वैल्यूज है उन लोग का 80 से ज्यादा है, एंड वी वांट द वंस हु आर बिलो 80 in Q. सो बिलो 80 in Q यानी कि Q का सर्कल को छोड़ के जो बच रहे 2A plus D वो लिखेंगे. सो 2A plus D. सो दिस इज इक्वल टू 4:2:1. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन. लास्ट Q देखते हैं पहले बिफोर सॉल्विंग दैट. 150 are at or above 80 percentile in exactly 2 sections. So what should I write 150 at? What is equal to 150? 150 students are at or above 80 percentile in exactly 2 sections. Yes, so it will be D plus E plus F. D plus E plus F are going to be exactly equal to 150 because those are the ones who have 80 percentile in exactly 2 sections. D have it in LR plus V, F have it in V and Q, E have it in LR and Q. G we are not taking because they have mentioned exactly 2. Okay, and G have all 3. Clear? Anybody have a doubt? So D plus E plus F is 150, that is given. Also एक और चीज हमें पता है, one more equation we have is AAA, 3A plus D plus E plus F plus G. टोटल जो है ये पूरे वैल्यूज का वो कितना है 200. टोटल इज 200. अब यहाँ पे ये इसकी वैल्यू रख दो, 150 रख दो इसको, तो क्या आएगा 3A plus G और फिर 150 को इस तरह भेज दो इज इक्वल टू 50. 3A plus G 50 आए. ठीक है, एक इक्वेशन आ गई. और अब बाकी का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये जो हमने लिया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब वो देखेंगे. सो 2A plus F, 2A plus E and 2A plus D is 4:2:1. अब one thing is clear that all these values have to be integers क्योंकि number of candidates cannot be in decimals, right? Number of people have to be in whole numbers. So therefore these values have to be integers. तो अगर मतलब अगर रेशियो ले रहे हैं तो अगर वो रेशियो को लाइक 7 से डिवाइड करना पड़ेगा ना. ये टोटल क्या है इसका 7. कैसे निकालते हैं किसी भी रेशियो की वैल्यू. सपोज टोटल दिया हुआ है, टोटल सपोज दिया हुआ है 42. ठीक है, अगर एक नंबर है 42 और उसको मुझे 4:2:1 के रेशियो में फाइंड आउट करना है तो हम लोग कैसे करते हैं उसको. टोटल लेते हैं रेशियो का 7. सो 4/7 इंटू 42, 2/7 इंटू 42 एंड 1/7 इंटू 42. यही करते हैं, राइट. तो यहाँ पे भी जो टोटल है, जो ये टोटल है 2A plus F, 2A plus E and 2A plus D, यानी कि टोटल है 6A plus D plus E plus F. ये जो टोटल है उसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 6A plus 150 because we know that D plus E plus F is 150. तो ये जो टोटल है this should be divisible by 7, right? Only if this is divisible by 7 we will get our whole number values. Any doubt? थोड़ा सा complicated है. I'm accepting that this question is a question from like difficulty level, okay, but still I hope it is explained, like it is understandable when I am at least explaining it. ठीक है, maybe इससे हम लोग कुछ सीख पाए. That's why we're just seeing it.
पर इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, यू हैव टू लीव इट. इट्स नॉट सॉल्वेबल विद इन 10-12 minutes. इट इज टाइम टेकिंग. इट इज टाइम टेकिंग. इट इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट. ये चीज को वहां पे एग्जाम में प्रेशर में सोच पाना इज डिफिकल्ट. ठीक है. वेन डायग्राम वैसे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट, मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल का होता है, बट दिस इज लाइक थोड़ा और डिफिकल्ट है. एनीवेज, दिस इज a similar question I told you from 2017 paper, and 2017 paper is believed to be the toughest paper of CAT of all time for DILR. So उसमें था ऐसा problem. ठीक है. So now for 6a plus 150 to be divisible by 7, can you tell me what are the values of a we can take? एक तो ऐसा करो कि 150 को कम कर दो, डिवाइड कर दो 7 से, तो 147 से वो चला जाएगा. 147 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 बचेगा. सो इसको 6a plus 3/7 भी लिख सकते हैं, राइट. I have removed 147 because that is exactly divisible by 7. So 6a plus 3 to be divisible by 7, what are the values of a that I should consider? That's my question. Yes, if we take a as 3, 6 into 3, 18 plus 3, 21. 21 is divisible by 7. Next, अगर आप 4, 5, 6 ये सबसे ट्राई करोगे तो नहीं आएगा. नेक्स्ट आएगा 10. 6 into 10 is 60 plus 3 63. 63 is divisible by 7. Next value ट्राई करोगे तो आएगी 17. 10 is possible, no? Why not 10? ठीक है. And so on. Yeah, it's in AP further. Now see, एक और इक्वेशन हमें मिला था, याद है? 3a plus g is 50. 3a plus g is equal to 50. इसमें अगर हम a को 3 पुट करेंगे, what will we get g as? If a is equal to 3, g will be equal to 50 minus 9. That is 41. And if we put a as 10, what will we get g as? 20. But if we put a as 17, what will we get g as? -1. So this case is not possible, but these two cases are possible. There is no issue with this case. Can you tell me any issue with these two cases? No, right? So we are getting 2 set of values. तो अब सारे वैल्यूज जो है वो 2 सेट्स होंगे, वो निकाल लेंगे हम. DEF कैसे निकाल पाएंगे? DEF का टोटल तो पता है 150 है, पर इंडिविजुअली DEF क्या है वो नहीं पता, तो वो देख लेते हैं पहले. To find that, now we have figured out कि if a is 3, what will be the total here? 6a plus 150, यानी कि 168. तो एक बार टोटल को 168 लेंगे और सॉल्व करेंगे. So 2a plus f is equal to 4/7 into 168. 2a plus e is equal to 2/7 into 168. And 2a plus d is equal to 1/7 into 168. Am I clear? And the other set of values, you will get it by taking a as 10. If you take a as 10, 6a यानी कि 60 plus 150 यानी कि 210. So same 2a plus f is equal to 4/7 into 210, 2/7 into 210, and 1/7 into 210. That's how we will get 2 set of values for D, E and F. 168 ऐसे आया कि क्या लिया था हमने? 6a plus 150 लिया था ना. 6a ये टोटल क्या है? 6a plus d plus e plus f, पर उससे हमने 147 हटा दिया था जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस, बट 150 तो है ही ना वो. तो 150 प्लस a को 3 रखेंगे तो 168 आएगा, और a को 10 रखेंगे तो 210 आएगा. तो इससे आपकी 2 सेट ऑफ वैल्यूज निकलेगी फॉर a एंड g. निकाल लो वैल्यूज. यस, क्लासेस रोज होते हैं एट 7 PM. टाइमिंग थोड़ा मैं चेंज करने का सोच रही हूँ. लेट्स सी, लेट्स फिगर इट आउट. अभी 1-2 दिन यही चलेगा, देख रही हूँ थोड़ा. So 7, 2 and 4, 24. और इस केस में a को 3 रखना, ठीक है, और इस केस में a को 10 रखना.
7:30 तो नहीं हो पाएगा, फिर रहेगा तो यही टाइम रहेगा, या फिर चेंज का मतलब है मैं सोच रही हूँ फर्स्ट हाफ में करने का बिफोर लंच। यार यश 120 60 30 ये कैसे आया? ठीक है, एक क्लास सुबह के टाइम पे रख के देखेंगे व्हाट्स द रिस्पॉन्स, अदरवाइज विल कंटिन्यू विद दिस। अभी नहीं करूंगी ये, थोड़े 2-4 दिन बाद करूंगी। आई विल इन्फॉर्म यू व्हेनेवर आई डू दिस। Akhil, it started today 4:30 to 6. ठीक है, इस केस में वैल्यूज आएगी, सो a को 3 रखेंगे तो दिस इज 6, 6 plus d is equal to 24, which means d is 18. In this case it's 48, 2 into 24 48, and 48 minus 6 will be 42, and in this case it is 96 minus 6, that is 90. ओके, सिमिलरली इस केस का भी कैलकुलेट कर लिया आपने, क्या है 93 42, नो दैट्स नॉट करेक्ट। यार आपकी वैल्यूज जो है, एक बात बताओ, वो 150 से ज्यादा कैसे आ रही है? d प्लस ई प्लस एफ का सम 150 है, ये पता है ना? So in this case it's 30 30 30. So 30 minus 2 into 10, 20. 30 minus 20, it's 10 here. In this case it's 60 minus 20, that's 40, and in this case it is 120 minus 20, 100. ठीक है, आपने को किसी ने यहाँ पे 160 और 30 भेजा था, आंसर कहाँ है? 160 और 30 आपने माइनस नहीं किया ना, 2a को माइनस भी तो करेंगे। ठीक है, दिस वाज द मिस्टेक। ओके, अब सारे वैल्यूज आ गए, 2 सेट ऑफ वैल्यूज हमें मिल गए, और a और g के भी। a यहाँ पे क्या है? a is 3, in this side a is 10, here g is 41 and g is 20, है ना? ठीक है, और ये क्या है? d e f, d e f। तो बस यही वैल्यूज निकालने थे, a b c तो है नहीं, a और d e f और g, सारे वैल्यूज आ चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, what best can be concluded about the number of candidates sitting for a separate test? अच्छा, ये और कुछ इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, ठीक है, वो अभी काम आएगी। कुछ और इन्फॉर्मेशन ये है कि हमने वो तो सॉल्व कर लिया, ठीक है, और यहाँ से हमें पता लगा था दैट h इज 0। मैं ये क्लू ढूंढ रही थी, नो वन इज बिलो द 80th परसेंटाइल इन ऑल 3 सेक्शंस, देयरफॉर h was 0। ठीक है, देयरफॉर वी डिडंट टेक एनी person outside this graph, and the sum of only all these values were 200. Next, MII uses a different process. So total 2 यहाँ पे इंस्टीट्यूट है जो लोग एडमिशन दे रहे हैं, ठीक है। जैट वाला जो प्रोसेस है वो कौन यूज कर रहे हैं? IIMF। और MII जो है वो डिफरेंट प्रोसेस यूज करता है फॉर सिलेक्शन। तो क्या है प्रोसेस? पहले कैट एग्जाम होती है, कॉमन एग्जाम होती है, उसके बाद जो ये है IIMF, वो जैट एग्जाम कंडक्ट करते हैं, ठीक है, वो जैट एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो जैट के लिए कौन लोग जा पाएंगे? हु आर एलिजिबल? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 80 परसेंटाइल इन 2 और 3 सेक्शंस, ठीक है, 80 परसेंटाइल इन 2 और 3 सेक्शंस एंड 90 परसेंटाइल ओवरऑल। दिस इज द क्राइटेरिया टू अपीयर फॉर जैट, ठीक है। और जो भी लोग जैट के लिए बैठ रहे हैं वो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे बाय IIMF। बट MII uses a different process. What is that? If any candidate is appearing for ZAT by IIMF, MII considers their ZAT score provided the candidate is above 80 percentile in LR. तो MII के लिए एक स्पेशल कंडीशन है, दैट इज अगर उसने ZAT क्लियर भी कर लिया है, अगर उसने ZAT के लिए एलिजिबल हो भी गया है, स्टिल उसमें से वो उन्हीं कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेगी जो लोग LR में 80 परसेंटाइल के ऊपर है। यानी कि अगर हम यहाँ पे वापस आए ग्राफ पे, तो जो MII है
वो सिर्फ D, G और E को कंसिडर करेगी, क्योंकि दोज आर having in LR 80 percentile or above. So they will not be considering these F students. Is that clear? MII will not consider these F student even if they are eligible for ZAT, because MII have a special condition. MII have a special condition that MII wants 80 percentile and above even in LR. So I can't answer that. Hemant, I told you कि it's a complex question and exam में तो definitely इसको solve करना possible नहीं है, और बाद में भी ये थोड़ा सा difficult question है. इस type का question वापस कभी देखा नहीं गया है. 2017 में ये question आया था और like it was very difficult to interpret and it was lengthy as well. So आप देख सकते हो half an hour cross हो चुका है and like we are only halfway. We are still trying to understand the question. ठीक है, तो बस ये कर रहे हैं ताकि कुछ सीख पाए, है ना कुछ तो हर क्वेश्चन से सीखते हैं. दैट्स व्हाई वी आर जस्ट डूइंग इट. ओके, नेक्स्ट क्या है? ठीक है, सो एनी कैंडिडेट, एनी अदर कैंडिडेट जिसका LR में 80 के ऊपर हो, ठीक है, पर हो सकता है उनका ओवरऑल 90 के ऊपर ना हो, तो हो सकता है कि वो उस ग्राफ में नहीं हो, वेन डायग्राम में ना हो वो. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई कैंडिडेट है जो सिर्फ LR में अच्छा था तो उसका 80% के ऊपर आया था बट ओवरऑल 90 के ऊपर नहीं है, तो वो लोग तो वेन डायग्राम में आपके नहीं होंगे, पर उनको भी MII कंसीडर करेगा, उनको सेपरेट टेस्ट लिखने देगा. तो MII का बेसिक कंडीशन क्या है कि LR में 80% के ऊपर होना चाहिए. फिर अगर उन्होंने ZAT लिखा है तो ZAT के स्कोर मान लेगा. अगर उन्होंने ZAT नहीं लिखा है, अगर वो एलिजिबल नहीं थे ZAT के लिए, तो उनके लिए MII सेपरेट टेस्ट रखेगा. पर उनका जो मेन क्राइटेरिया है वो है ये. क्लियर? ओके, सो नाउ those who have 80 percentile in LR but who is not eligible for ZAT is required to appear for this separate test conducted by MII for being considered for final selection. Altogether, there are 400 candidates this year who are at or above 80 percentile in LR. तो total ऐसे 400 candidates है जो कि LR के लिए है. ठीक है, और उसमें से पर ZAT वाले कितने पहले वो निकाल लेना, फिर पता लग जाएगा कि जो अलग से टेस्ट लिखेंगे वो कितने होंगे. ठीक है, because when in Venn diagram we have only taken those 200 who have more than 90 percentile and above. ठीक है, ये 400 लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं ना जिसका टोटल 90 के अबव नहीं आ पाया पर LR में वो 80 के ऊपर ले आए. Yeah, so first question, the answer is 3 or 10. क्योंकि देखो ये जो LR में 80 के ऊपर है उनमें से E, G और D ऐसे होंगे जो लोग को अलग से टेस्ट नहीं लिखना पड़ेगा. they will be selected from ZAT. ठीक है, D, E और G, D plus E plus G ऐसे होंगे जो ZAT के थ्रू सेलेक्ट हो जाएंगे. बाकी के जो A है, ठीक है, जो A की वैल्यू है वो उनको भी दोबारा टेस्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि उनका LR में 80 अबव है, और बाकी जो 400 से माइनस करके बचेंगे उनको भी लिखना पड़ेगा सेपरेट टेस्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन वैसे ये है, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सिटिंग फॉर द सेपरेट टेस्ट फॉर MII who were at or above 90 percentile overall in CAT. तो जो 90 के ऊपर थे पर फिर भी उनको सेपरेट टेस्ट लिखना पड़ा, वो कौन होंगे? वो होंगे ये A कैंडिडेट्स, और A की वैल्यू क्या है? 3 और 10. So the answer is option C, 3 or 10. Clear? Okay, next question. Next question is, if the number of candidates who are at or above 90 percentile overall and also at or above 80 percentile in all 3 sections, यानी कि G की बात कर रहे हैं, है ना? 90 percentile overall and at or above 80 in all 3 sections, that is G. So if they are telling G is a multiple of 5, if G is a multiple of 5, what is the number of candidates who are at or above 90 percentile overall and at or above 80 in both LR and Q? Answer that. In both LR and Q. So जब G की वैल्यू
मल्टीपल ऑफ 5 है, यानी कि कब है वो, जब a की वैल्यू 10 है, g की वैल्यू 30 है, सॉरी 20 है, और d इज 10, है ना, d is 10, e is 40, f is 100, यही है ना। तो आपको क्या पूछा है कि उस वक्त एल आर और क्यू में किन के 80 परसेंटाइल एंड अबव है। सो डोंट टेक जस्ट ई, यू हैव टू टेक जी प्लस ई, ठीक है, जी प्लस ई लेंगे, आंसर 40 नहीं होगा 60 होगा। यहाँ पे देखो एल आर प्लस क्यू में पूछा है, एल आर प्लस क्यू में किनका है 80 परसेंटाइल एंड अबव, सो इट विल बी दिस होल वैल्यू, क्योंकि ओनली एल आर प्लस क्यू नहीं बोला है, ठीक है। तो पूरी वैल्यू लेंगे ई और जी की, और वैल्यू क्या थी ई और जी की, व्हेन जी इज अ मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि ये केस लेना था, सो ई प्लस जी इज 60, द आंसर इज 60, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, again, if the number of candidates who are at or above 90 percentile overall and at or above 80 percentile in all three sections is a multiple of 5, फिर से अगर g is a multiple of 5, यानी कि g is 20, a is 10, d, e, f are 10, 40, 100, then how many candidates were shortlisted for that for IIMF, how many candidates were shortlisted, तो ये सारे शॉर्टलिस्ट होंगे जिन जो दो सेक्शन में 80 परसेंटाइल के ऊपर ले आए और जो तीनों में भी ले आए, सारे शॉर्टलिस्ट होंगे, सो द आंसर इज ऑल ऑफ दिस, दैट इज 170। अमन, बिकॉज इट इज मेंशन कि यू हैव टू टेल कि सेपरेट टेस्ट किन्होंने लिखा जिनका ओवरऑल 90 के ऊपर था, क्योंकि ओवरऑल 90 के ऊपर पूछा था, तो ओवरऑल 90 के ऊपर तो वेन डायग्राम से ही लेने पड़ते ना, और उनमें से सिर्फ ए ने टेस्ट लिखा होगा, क्योंकि बाकी जो थे वो एलआर वाले सर्कल में वो तो जैट से ही सिलेक्ट हो गए, क्लियर। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, फिर दूसरा सेट देखेंगे, जो लोग ने अभी ज्वाइन किया है प्लीज वेट। इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एट और अबव 90 परसेंटाइल इन एलआर, एक बार ये क्वेश्चन देखो। Okay, Suniti, I might have skipped it. I'll check. You see this question, everybody? I'm not finding it, Suniti. Can you? Acha, got it. Okay, so this class that you're watching right now is a free class. It happens every day from 7 p.m. to 8 p.m. where we see miscellaneous problems on DI of different difficulty level. On DILR. Okay, these classes mostly happens every day, and whenever there is a change, I'll inform you in the class only. Okay, so this question is, if the number of candidates who are at or above 90 percentile overall and is also at or above 80 percentile in LR in CAT is more than 100. Let's go back. क्या होगा? At or above 80 percentile in LR, यानी कि A, D, G और E की टोटल वैल्यू जो है वो 100 के ऊपर होनी चाहिए, वो वाला केस लेना है। इस केस में A, D, E और G की वैल्यू कितनी होगी? 10, 40, 20 and 10. That is only 90. No, only 80. The total is only 80. So यानी कि ये केस नहीं लेने। कौन सा क्या केस चाहिए हमें, जहां पे इन चारों वैल्यूज का सम 100 के ऊपर आए। यहाँ पे देखो 3, 41, 42 and 18. What is the sum? 104.
सो यहाँ पे सम इज मोर देन 100, यानी कि दिस इज द केस वी हैव टू यूज टू आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है, उससे बस हमें केस की इंफॉर्मेशन दी गई है वो क्लू को यूज करके. Okay, then if it is more than 100, then how many candidates had to sit for separate test for MII? तो सेपरेट टेस्ट कितने लोग थे टोटल? 400 लोग थे जिनका एलआर में 80 परसेंटाइल और अबव था. ठीक है, उनमें से पहले वैल्यूज लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस केस. ए की वैल्यू है 3, जी इज 41, डी इज क्या था एक बार बता दो. डी इज 18 ना, डी इज 18, ई इज 42 एंड एफ इज 90. ठीक है, ये वैल्यूज को रेफर करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू दिस जो 80 अबव थे एलआर में वो कौन थे? ए, डी, ई और जी. ठीक है, ये थे 80 अबव इन एलआर. पर इनमें से ए जो है उनको सेपरेट टेस्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि दे वर नॉट सिलेक्टेड फॉर जैट. ठीक है, बट दीज 3 ये जो नंबर्स थे वो एलिजिबल थे जैट के लिए. तो 400 में से पहली बात 104 लोग ऐसे थे आउट ऑफ 400 जो, या फिर ऐसे ले लो 400 में से इतने लोग कितने होंगे? ये 101. 400 में से 101 लोग ऐसे थे जो जैट से सेलेक्ट हो गए. 101 लोग ऐसे थे जो जैट से सेलेक्ट हो गए. बाकी 299 को सेपरेट टेस्ट लिखना पड़ेगा. द आंसर इज 299. क्लियर? सबको समझ में आ गया? थोड़ा सा डिफिकल्ट था मैं मान रही हूं, पर अगर जितना भी समझ में आया है काफी है. ठीक है, ये समझ पाना ही बहुत बड़ी बात है. इट वॉज अ डिफिकल्ट सेट, नो डाउट. ठीक है, अभी दूसरा सेट देखेंगे वो बार ग्राफ वाला. दिस इज द वन. ठीक है, ओके, फटाफट करते हैं ये. तो अर्बन हेल्थ इंडेक्स ऑफ अ सिटी is computed on the basis of 3 parameters: weight, height, and volume of bone. Each of these 3 parameters is measured on a scale of 0 to 8 integers only. ठीक है, weight, height, and bone, volume of bone. Weight, height, एंड वॉल्यूम ऑफ बोन. इसमें मतलब अलग अलग पॉइंट्स जो है आउट ऑफ 0 to 8 वो दिए जाते हैं. ठीक है, दीज 3 पैरामीटर्स आर मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 8 इंटीजर्स ओनली. अ फैमिली इज देन categorized based on the total score obtained by summing the scores of all 3 parameters. ठीक है, as shown in the following table. तो अगर जो ये टोटल इन तीनों का टोटल अगर किसी भी फैमिली के लिए 0 to 4 के बीच में है देन इट विल बी अ बैड हेल्थ. ठीक है, 5 to 8 यानी वेरी बैड, 9 to 13 यानी एवरेज, and 14 to 19 means good, and 20 to 24 means very good. Following diagram depicts the frequency distribution of the scores of WHNV of 10 families: Smith, Jones, Williams, Miller, Clark, Scott, Collins, Campbell, Bell and Murphy. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ अगर आप समझ लेते, दिस वाज अ इजी क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्वेबल था. तो इसमें खाली ये समझना था, ये W, H और V दिए हुए. ठीक है, यानी कि 2 फैमिलीज ऐसे थे जिसको H में 1 स्कोर मिला, क्योंकि इस एक्सिस पे आप देख सकते हो क्या दिया है, स्कोर्स. इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने बार अपीयर हुआ वो वैल्यू. यस सुदीपा, लेट इट बी. ठीक है, दैट इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस इन आवर सोल्यूशन. तो ये जूम नहीं हो सकता यार, इससे आप स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख लो. ठीक है, तो ये देखो अभी क्या करना है. ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ को अगर हम लोग जल्दी से एक टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे तो पूरा क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएगा. उसके लिए W, H और V को लेंगे और देखो जो स्कोर 1 है, स्कोर 1 में जो ब्लू बार है वो है ही नहीं, यानी कि किसी को भी वेट में स्कोर 1 नहीं मिला.
हाइट में कितने लोगों को स्कोर 1 मिला है? 2 फैमिलीज को. कैन यू सी हियर? स्कोर 1 हैव अपीयर्ड ट्वाइस. So 2 families have got score 1 in height and 1 family got it in V. Can you see? 1 family have got score 1 in V. इसी तरह fill this entire table for score 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So second score 2, फिर से देखो यहाँ पे कोई blue bar नहीं है, यानी कि W में किसी को score 2 नहीं मिला, H में एक family को मिला है और V में 3 family को मिला है. ठीक है, I'll just जूम तो नहीं कर सकती, एटलीस्ट मैं यहाँ पे ये नंबर्स को थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ. सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. ठीक है, अब आई थिंक विजिबल हो जाएगा. नेक्स्ट बताओ स्कोर 3. विवेक, व्हाट्स योर डाउट? थर्ड स्कोर 3 जो है, स्कोर इस लाइन में स्कोर्स दिए हुए हैं, तो स्कोर 3 जो है वो W में कितने फैमिलीज को मिला? 3 बार. दिस इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कितनी बार एक वैल्यू अपीयर हुई है वो दिखाया गया है इस ग्राफ से. सो फॉर 3 फैमिली दे हैव गॉट द स्कोर 3 इन W. फॉर 2 फैमिली दे हैव गॉट द स्कोर 3 इन H. फॉर 4 फैमिली दे हैव गॉट द स्कोर 3 इन V. उसी तरह नेक्स्ट दिस विल बी 3, 1, 1, 2, 3, 2, 3 and 0. Nobody got a score 5 in V. Gray bar is missing from here. The orange bar is missing here. So 1, 0, 1. 1. Nobody got a 6 in H and 1. Next. Again it's blue and orange. So 1, 1 and 0. Clear? So once you do this, now you will no longer require the graph. Okay, we will not use the graph any longer. Now see the clues. The clue says Smith family and Jones family jointly have the lowest total score, that is 7. ठीक है, जो सबसे कम स्कोर है वो क्या है? 7 है, और वो स्मिथ फैमिली को भी 7 मिला है और जोन्स फैमिली को भी 7 मिला है. और उनके जो स्कोर्स है W, H और V में वो भी सेम है. यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे, यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे, यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे है, और टोटल भी सेम है. ठीक है, उनके तीनों पैरामीटर्स के स्कोर भी आइडेंटिकल है, उनका टोटल भी आइडेंटिकल है, और ये लोवेस्ट टोटल है. इतनी इंफॉर्मेशन हमें फर्स्ट क्लू से मिली है. इज दैट क्लियर? ओके. So first question was, what is Smith's score in H? Smith's score in H. So just by using that information that all the scores in all the 3 parameters are identical, just by using that information, can you find the answer to this question? No, it's not jointly 7. Smith and Jones jointly have the lowest total score, which means both have the lowest total score. How can they jointly have a score of 7 and also have same score in all the 3 parameters? Can they have 3.5, 3.5? No, right? So अगर वैसा डाउट आया भी था तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए था. If we take 3, 1, 3, do we have 2 3s for W, and do we have 3 2s, 2 3s for V, and do we have 2 1s for H? Do we have all of that? Fine. But do we have any other possibility? किसी को कोई और आंसर मिला है? 4 to 1 भी तो 7 हो सकते हैं. Why not 4 to 1? Yes, we can go for that also. No, Harsh, we don't have to do that. We don't have to make table for all families. You don't have to waste time. Do only as much as required. जब सिर्फ स्मिथ फैमिली के पूछा है तो सबके लिए क्यों बनाओगे? और कैसे बनाओगे? क्लूज ही नहीं है. Yes. So अगर 4 to 1 का combination लेते हैं to get a total of 7, we can't take the 2 in
H we cannot take the 2 in W क्योंकि W में 0 2 है, H में सिर्फ एक ही 2 है, हमें जो भी वैल्यू चाहिए वो दो बार चाहिए, तो ये V में ले सकते हैं ये 2, ठीक है। जो 4 है वो V में नहीं ले सकते, सिर्फ एक ही है, H में नहीं ले सकते, एक ही है, पर W में ले सकते हैं, 3 है। और जो 1 चाहिए वो H में ले सकते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबल स्कोर है। पर इस केस में भी अगर आप देखो 4 2 1, इस केस में भी जो H है वो अभी भी 1 ही है, therefore the answer is 1। कोई भी पॉसिबल केस ले लो, पर द आंसर इज 1 ओनली, H will be 1 ओनली, ठीक है। All right, next question is what is Murphy's score in W? What is Murphy के लिए एक सेकंड क्लू दिया हुआ है, चेक करो। Murphy's score in W. Find it. The total for Murphy is given. आंसर इज जस्ट 1, सिर्फ H का स्कोर पूछा था, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, आंसर इज 1। इन H it was 1 only, whether we take 4-2-1 or 3-1-3, we don't require the actual calculation, it doesn't matter। So the total for Murphy have to be 17, that's the clue। The total for Murphy has to be 17, बस इतना ही क्लू है। और लास्ट क्लू भी यहाँ पे यूज करेंगे, क्या दिया है लास्ट क्लू में? All the families which are categorized as good have the highest score in exactly one parameter। तो ये जो 7 आप देख रहे हो W में, और ये जो 7 आप देख रहे हो H में, और ये जो 6 है V में, ये तीनों हाईएस्ट स्कोर है इन पैरामीटर्स के। 7 in W, 7 in H and 6 in V are the highest score in these three parameters। तो इनमें ये तीनों एक साथ किसी फैमिली को, या फिर इनमें से कोई दो किसी एक फैमिली को नहीं जा सकते। All these three highest scores have to go for 3 different families, that is what the third clue means। और कौन से 3 families को ये जाएंगे? The families which are categorized as good। तो क्या Murphy is categorized as good family? Yes, because we can see that Murphy's score is lying between 14 to 19। Murphy's score is 17, that is between 14 to 19। So Murphy is a good family, which means इन तीनों में से कोई एक ही हाईएस्ट स्कोर मर्फी को जा सकता है, ठीक है। So to get 17, what are the possibilities? If we take one of the 7s, we cannot take any other 7 or 6। Yes, so we can take 7 6 4, that would give us 17। Any other possibility? 5 5 7, okay। Anything else? 6 4 7 we have taken, anything else? Okay, so we will check both the possibilities, don't assume, कभी भी assume मत करो, ठीक है। तो एक चीज देखो कि ये 5 5 7 वाला जो कॉम्बिनेशन है, तो 5 किस में ले सकते हैं? या तो W में या H में। V में तो 2 5 है ही नहीं, ठीक है। सॉरी, V में एक भी 5 है ही नहीं, तो V में नहीं ले सकते 5, या तो W में ले सकते हैं और H में ले सकते हैं। और फिर 7 कहाँ मिलेगा? V में तो 7 भी नहीं है, V में तो 5 भी नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते। क्लियर? एक कॉम्बिनेशन कैंसिल हो गया, अब बचता है सिर्फ ये। तो इसमें से अगर W या H किसी में अगर 7 लेते हैं, क्योंकि 7 तो V में नहीं है, तो W या H किसी में ही लेना पड़ेगा। पर फिर 6 जो है वो V में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर 6 V में लिया तो 2 हाईएस्ट वैल्यूज जो है वो मर्फी फैमिली को चली जाएगी। एम आई क्लियर? इसीलिए अगर W या H में से 7 ले रहे हैं, तो उसी में से किसी दूसरे में 6 लेना पड़ेगा, और V में 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 देख लो, H के पास तो है नहीं 6, W के पास है, तो यानी कि यहाँ पे W आएगा और यहाँ पे H। सो द आंसर इज 6 7 4 for W H V। So what's the answer? What is Murphy's score in W? It is 6, it's not 7।
ठीक है, it is 6. Clear? सेम फैमिली कैसे जाएगा, क्या पूछ रहे हो हर्ष? क्योंकि पॉसिबल नहीं था 557 लेना। अगर वी में देखो, वी में ना ही कोई 5 है ना ही 7 है, तो वी में क्या लेते हैं अगर 557 कॉम्बिनेशन लेोगे तो? क्योंकि W में जो 6 है वो उसका हाईएस्ट नहीं है, वो उसका सेकेंड हाईएस्ट है। हाईएस्ट के लिए बोला है ना, सिर्फ अलग अलग फैमिलीज लेनी है। 665, ओके लेट्स सी 665 ऑल्सो। 665 लेंगे तो क्या होगा? एक 6 तो ये वी में लेना पड़ेगा, ठीक है, एक 6 वी में ले लेंगे, तो वी को हाईएस्ट, मतलब वी का हाईएस्ट जो है वो मर्फी को चला गया। एंड देन अनदर 6 कहाँ लेंगे? वो भी W में लेना पड़ेगा, और वो सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू है, सो अलाउड, फाइन। और जो H है उसका 5 लेंगे, फाइन। सो दिस केस इज ऑल्सो पॉसिबल। क्यों नहीं होगा? H में तो 5 है, H में 5 है, इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, बट एनीवेज द वैल्यू इज 6 ओनली। ठीक है, करेक्ट, गुड पॉइंट, नोबडी एल्स सेड दैट। फाइन, ठीक है, करेक्ट है ये भी, कोई एक ही पॉसिबल होगा। Murphy has exactly a score of 17 and we have allotted just one high score to it. Fine, कोई इशू तो नहीं है ना? ठीक है, looks fine. Let's check the next question. Next question कहाँ है? Okay, next question is Williams and Miller, two families which are categorized as good, are tied with the same total score. What is the maximum they can have? William and Miller's. ठीक है, two families, Williams and Miller's, are tied at the same total score. Same total score. We need to find what can that score be if both families are good. Both families are categorized as good. दीक्षा, हाईएस्ट स्कोर है ना 6? जो 6 हमने वी में दिया है वो तो हाईएस्ट ही है, वी में तो हाईएस्ट वैल्यू 6 है, तो हर 3 गुड फैमिलीज है, तीनों को एक एक हाईएस्ट स्कोर जाना था, तो अगर हमने यहाँ पे मर्फी को 6 दे दिया, so since what we found for 1 and 2, that were the only combination in 1 and 2, so yes, you can say in a way it's connected. ठीक है, so Williams and Millers, let's check for them what can we take the highest total. तो अब इसमें से कोई एक वैल्यू, कोई एक लेके चेक कर लो, ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन लेके नहीं होगा, कोई भी एक ले लो और चेक कर लो। तो सपोज अगर हम लोग इस वाले कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं 656, तो एक हाईएस्ट स्कोर जो है वो मिलर को जाएगा और एक हाईएस्ट स्कोर जो है वो विलियम्स को जाएगा। ठीक है, 3 फैमिलीज को जाने थे, क्योंकि 3 गुड फैमिलीज है, उनको एक एक हाई स्कोर जाना था। अगर मर्फी के लिए हम ये लेते हैं, तो इनमें से एक मैंने इसको दे दिया W को, और एक मिलर को, एक विलियम को, एक मिलर को। ठीक है, अब जो सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं वो क्या है? So I'm proceeding with just one combination for once. Let's see. What is the next highest value I can use for H? For H, 7 is gone and 1 5 is gone. I still have 2 5s, so I can allot 1 5 here. For V, 6 is gone. Next value we have is 4, so we can allot 1 4 here. Okay, then for Miller,
के लिए W में क्या दे सकते हैं? 7 तो गया, 6 भी गया, ठीक है, 7 विलियम्स को गया, 6 मर्फी को गया. नेक्स्ट हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू इज 5. Okay, and for V, next highest value for Miller's will be what? 6 is gone, 4 is also gone, we have to take 3. Take the total. This is 15 and this is 7 plus 5 plus 4, that is 16. ठीक है, तो एक 16 आया है, 15 आया है, बट क्वेश्चन क्या था कि अगर सेम टोटल स्कोर होना है तो वो क्या हो सकता है? तो 15 मतलब हमने एकदम एकदम हाईएस्ट वैल्यूज लिया तब ये आया है टोटल. तो 15 को हम लोग बढ़ा के 16 नहीं कर सकते किसी भी हालत में, पर 16 को हम लोग घटा के 15 कर सकते हैं ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए. Therefore the answer is 15. Clear? लास्ट क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन भी अगर आप लेके सॉल्व करते तो ऐसा ही आता. डोंट वरी, ठीक है, यू कैन ट्राई एंड सी इट. या इफ यू वांट यू कैन ट्राई द अदर केस, यू विल गेट द सेम थिंग ओनली. क्योंकि उस केस में फिर दूसरे नंबर जो है वो यूज हो जाते हैं और कुछ और नंबर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता. बट एनीवेज आंसर वुड हैव बीन सेम. ठीक है, कॉम्बिनेशन का फर्क है, टोटल तो सेम है ना, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन. तो हो गया. लास्ट क्वेश्चन का ये लास्ट ही था. अच्छा, if Williams score 16 and Miller score 15, then what is the maximum number of families with a score of 13? What is the maximum number of families who can get 13 if Williams score 16 and Miller score 15? क्या बोला था? If Williams score 16 and Miller score 15, then how many maximum family can have a total of 13? How many maximum families can have a score of 13? That's the question. ठीक है, तो अब देखो जो जो वैल्यूज यूज हो गए हैं उसके अलावा चेक करेंगे कि 13 का टोटल कितने फैमिलीज के लिए अचीव किया जा सकता है. तो ये 7 7 6 को हटा दो, ये यूज हो चुका है. इसके बाद ये 6 भी यूज हो गया. ठीक है, W के लिए एक 7 एक 6 और एक 5 यूज हुआ है, तो एक 5 अभी भी है. और H के लिए 2 5 और एक 7 यूज हो गया, 7 गया, और यहाँ पे एक 5 अभी भी है. V के लिए एक 6 एक 4 और एक 3 यूज हो गया है, तो 3 3 अभी भी है. ठीक है, अब देखो, अब मुझे बताओ कि कितने फैमिलीज का टोटल हम 13 अचीव कर सकते हैं. Yes, we can do 1 from 5 5 3. Any other possibility? So we have 1 5 1 5 and 1 3. If we have 3 threes, we'll take 1 from there. So 1 1 3, मतलब 5 5 3. Any other possibility? और कोई कुछ भी नंबर ले लो कि आप 13 ला सकोगे. 4 4 3 लिया तो it's just 11. Okay, so with no other possibilities, we can get a 13. So since there was just 1 5 and 1 5 available here, we can get only for one family the total of 13. अमन सिर्फ 3 ही वैल्यूज है. ठीक है, और 4 4 4 1 से भी 50, अच्छा 13 हो रहा है, पर सिर्फ 3 ही वैल्यूज है, 4 नहीं ले सकते. 3 ही पैरामीटर्स है ना, कैसे बता रहे हो 4? Okay, so we are done. So was this difficult? And again, this was a question from 2017 paper. आज जो हमने दोनों questions किए हैं, दोनों 2017 paper में आपको मिल जाएंगे. And 2017 paper is believed to be one of the toughest paper. Yeah, right. So वो इकलौता अभी तक ऐसा पेपर था जिसमें सिर्फ 3 सेट, सिर्फ 12 questions करके out of 32 you could have got a 98 percentile. It was so tough, you can imagine. नहीं, सिर्फ आई थिंक सिर्फ ये 2 ही सेट्स थे, या शायद एक और था, आई एम नॉट श्योर.
ठीक है, इसके बाकी सेट्स जो है वो भी हम लोग कवर कर लेंगे कल की क्लास में. आई थिंक वो सब अब सिंपल है, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. ऑल राइट देन, आई सी यू टुमारो सेम टाइम 7 PM. ठीक है. और जिनको अगर कॉन्सेप्चुअल कोर्स ज्वाइन करना था, आज से स्टार्ट हुआ है 4:30 to 6. ठीक है, दैट इज ऑन प्लस द कंप्लीट कोर्स ऑन DILR, जिसमें वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स एंड कवरिंग द एंटायर सिलेबस. सो आपने 4:30 to 6 वाली क्लास की थी, तो फिर 9 वाली क्लास करने की जरूरत नहीं है. Okay, so anybody who is planning to go for plus, don't forget to use my referral code to get 10% discount and also get the free guidance and counseling throughout your CAT preparation. ओके, सो कोई जो अभी बहुत ही लो स्टेज पे है, क्योंकि सिर्फ 6 मंथ बचे हैं. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप खुद से नहीं कर पाओगे या फिर आपके पास एक रास्ता नहीं है, मतलब आपको चलना है पर आपके पास अगर एक डायरेक्टेड पाथ नहीं है, इफ यू डोंट नो हाउ टू डू इट बट इफ यू वांट टू डू इट, देन यू कैन गो फॉर दिस कोर्स. ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं लग रहे हैं, जस्ट थिंक ऑफ इट एज एन इन्वेस्टमेंट, और इससे जो रिटर्न आएंगे वो ह्यूज हो सकते हैं. ठीक है, अगर आपने कर लिया, अगर आपको डिटर्मिनेशन है, तो रास्ता हम लोग दिखाएंगे, हम लोग बताएंगे कि कैसे उस पर चलना है. यू जस्ट हैव टू डू योर पार्ट. ठीक है, सो I think you know the plans already. Still, I'll show you once. Those who wish, they can join. और जो लोग अगर थोड़े मीडियम स्टेज पे है, लाइक दे थिंक कि वो लोग अभी खुद से कर आके उनका 90 परसेंटाइल अगर वो क्रॉस कर लेंगे, तो उनके लिए भी मेरा सजेशन है कि जब आपको लग रहा है कि आप इतने केपेबल हो, तो क्यों ना थोड़ा और, मतलब एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके क्यों ना इस 90 को 98 99 बनाया जाए. इट कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर, राइट? सो एवरीबडी कैन थिंक अबाउट इट वंस. अब तो 6 मंथ्स कोर्स लेने से भी हो जाएगा, क्योंकि अगर अगर आप लोग और कोई एग्जाम नहीं लिख रहे हो आफ्टर कैट, तो 6 मंथ्स कोर्स लेने से भी इट विल बी फाइन. नाउ आई शो यू दिस. नॉट वन, नहीं वो आई है, आई. ठीक है, जस्ट टेक इट एज अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, थोड़ा सा सोचो उस तरीके से, बिकॉज वन गुड कॉलेज कैन चेंज योर एंटायर लाइफ, राइट? सो think about it. If you want to go for it, don't forget to use my code. I'll just show you the plan for once and then we will end this class. तो आज से ही नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, मतलब अब और लेट नहीं करना चाहिए. इफ यू आर प्लानिंग, यू शुड लाइक जॉइन इट नाउ, इट्स हाई टाइम. फिर और टाइम हाथ से निकलते जाएगा तो कोई फायदा नहीं है फिर. Okay, so it's here. So we have a 1 month, 3 month, 6 month, 12 month and 24 months plan. If you are writing any other exams also apart from CAT, after CAT, then you can go for a 12 months course, क्योंकि CAT के बाद भी classes चलेंगी जो 10-12 other MBA entrance exams होते हैं, उसकी preparation भी हम dedicated preparation करवाते हैं. ठीक है, और जो GTPI है वो भी cover हो जाएगा 12 months वाले कोर्स में. और अगर नहीं, अगर आप सिर्फ कैट के लिए जाना चाहते हो, यू कैन गो फॉर अ 6 मंथ्स कोर्स. पर मैं बता दूं, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स में जो है ज्यादा फर्क नहीं है. इट इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ 3150 रुपीज. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली सोच लेना कि कौन सा कोर्स मतलब क्या बेनिफिशियल रहेगा. अगर इतने से फर्क नहीं पड़ रहा और अगर आपको जाना है और कोई एग्जाम्स के लिए, देन इट्स बेटर टू गो फॉर 12 मंथ्स, अदरवाइज 6 मंथ्स. जून में क्रैश कोर्स वीकेंड वाला बोल रहे हो अगस्त्य? नहीं, वो मतलब क्रैश कोर्स है, वो थोड़ा फास्ट ट्रैक होगा पर सारे टॉपिक्स कवर होंगे. ठीक है, बीट्स कंटिन्यूएशन नहीं है. ऑल राइट, और जो लोग अभी से 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो और भी बेटर ऑप्शन है. सिर्फ 18,900 में आपको 2 years की प्रिपरेशन मिल रही है. इससे बेटर कहाँ मिलेगा आपको? कहीं पे मिल जाए तो आप बता दो मुझे. मतलब अन अकेडमी इज जस्ट ऑफरिंग टू मच.
और अभी अगर आप फायदा नहीं उठाओगे देन व्हाट टू से, हमारे टाइम पे तो था नहीं ऐसा कुछ. सो अभी भी है ऑफलाइन कोचिंग, इट गोज अप टू 50-60,000 1 लाख, इतना इतना लोग स्पेंड करते हैं, फिर जाते भी नहीं है क्लासेस. फिर पता नहीं मतलब क्या होता है, एक एक टीचर ही रहते हैं वहाँ पे, ऑप्शन नहीं होता टू स्विच, ऑल दोज इश्यूज आर देयर, है ना. और यहाँ पे इतना कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप पूरे इंडिया में जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनसे घर बैठ के पढ़ पा रहे हो. ठीक है, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, योर टाइम दैट इज सेव्ड, ट्रैवलिंग टाइम दैट यू कैन यूज फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट क्रैक दिस एग्जाम विदाउट सेल्फ प्रैक्टिस. टेक इट फ्रॉम मी, किसी से भी पढ़ लो, कोई भी क्लासेस ले लो, कितना भी पैसे दे दो, इट विल नॉट इंश्योर यू अ गुड परसेंटाइल अनलेस यू आर नॉट फॉलोइंग एंड डूइंग जो वो बताते हैं. अगर वो डेडिकेटेड प्रैक्टिस आप खुद से नहीं करोगे जब तक, कुछ नहीं हो सकता. ठीक है. और क्लासेस अगर मिस हो जाते हैं तो रिकॉर्डिंग मिलती है. ऑफलाइन क्लासेस में इतना इतना पे करने के बाद भी मिस हो गया तो हो गया, nobody will do anything about that. So these are the things, you can read it here, you'll get this PDF after the class, you can collect it and see it. इसमें और भी पॉइंट्स डाल रखे हैं मैंने कि कैसे प्रिपेयर करना है, पूरा सिलेबस भी दिया हुआ है इस PDF में, तो ये आप क्लास के बाद डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है. एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड फॉर पर्सनल गाइडेंस. ओके, तो मैं सिर्फ DILR पढ़ाती हूँ, बट आई स्टिल गाइड यू अबाउट हाउ टू गो हेड विद अदर सब्जेक्ट्स, विच टीचर्स टू फॉलो, व्हाट टू डू. ठीक है. और कोई भी लाइक जनरल प्रॉब्लम हो तो यू कैन डिस्कस दैट फ्रॉम विद मी. ऑल राइट, दैट्स इट. देन वी विल एंड दिस क्लास हियर. यू कैन श्योरली थिंक अबाउट इट. जस्ट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट. कहीं पे भी प्रॉफिट करना हो तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट? सो जस्ट टेक इट लाइक दैट. अगर थोड़ा भी लाइक इससे फर्क पड़ जाएगा, अगर 90 की जगह 96, 7, 8 परसेंटाइल आ जाएंगे तो एक बेटर कॉलेज मिल जाएगा, और उससे बेटर एक्सपीरियंस प्लस बेटर पैकेज एट द एंड. तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट यू हैव टू थिंक राइट नाउ. इट्स गेटिंग लेट. ठीक है, 6 महीने रह गए हैं. ओके, ऑल राइट देन, बाय. आई सी यू टुमारो 7 PM. बाय, गुड नाइट. ज्वाइन ऑन टाइम गाइज. अभी देखो क्लास खत्म हो रहा है, अभी ज्वाइन कर रहे हो. मिस हो गया, 7 बजे से रोज क्लास होती है. टाइमिंग भी अब फिक्स कर दिया है मैंने, ताकि रोज रोज चेंज ना करना पड़े, पता नहीं चले ऐसा ना हो.